Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. First of all, I would like to say thanks to all of you. Watch my videos regularly, and I got so many comments. I'm very happy to see the comments to appreciate my confidence and some vision aspects regarding to my content that I've given to you in every video. So, just apart from the articles we have discussed in the previous videos as definite article, indefinite article, and possessive article. The articles belong to a group that is called demonstrative words. So in this video, I would like to discuss with you another type of the article, or you can say determiner, that is called demonstrative determiners. So आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज सम टाइम Yes, people confused, students confused कि demonstrative pronoun है या demonstrative determiner है या article है. Yes, it is got confused. But today in this video, I tried to solve the issues regarding to the confusion of the students, those who are using just determiners not only in the exam but also in the speaking ability. Yes. So आज जो टॉपिक की बात हो रही है वो उसे कहते हैं demonstrative determiners. But before to discuss about the demonstrative determiners, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि possessive determiners से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि what is possessive. So same thing is there. Before to discuss the possessive determiners or here is demonstrative determiners, we must have to know कि demonstrative words जो हैं वो determiners का रोल करते हैं या pronouns का. Yes. So what happens? Come to the here. Number one is demonstratives, determiners or demonstrative pronouns. So what happens? We have four demonstrative words. Number one is this. Number two is these. Number three is that, and number four is those. हमारे पास सिर्फ four demonstrative words हैं. This, that, these, and those. Now come to the here. Are often used just to the beginning of a noun phrase that is called demonstrative determiners. It means ये बहुत आसान है फाइंड आउट करना कि demonstrative words कब demonstrative determiner बनते हैं एंड कब demonstrative pronouns. तो नंबर वन मेथड क्या है कि जब demonstrative words जो this, that, these and those नाउन फ्रेज से पहले यूज हो, इट मींस बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेज, तब ये हो जाते हैं demonstrative determiners. एंड यही demonstrative words जब किसी सेंटेंस में विदाउट नाउन यूज होते हैं, इट मींस वी आर यूजिंग demonstrative words at the place of nouns or pronouns, or you can say using before the words and after the words in a sentence, तभी हो जाते हैं demonstrative pronouns. How? Come to the examples. Yes. So what happens? Examples हमारे पास है look at that butterfly. Yes. And butterfly, it is a name of a animal. Yes, name of a bird. So ये name noun है because names are nouns. अब इससे पहले देखिए हमने यूज किया है demonstrative word जो that है. Look at that butterfly. Look at this butterfly. अगर यहाँ पे this भी होता, look at this butterfly. So what happens in this case when we use demonstrative words to the beginning of noun phrases? मतलब जब demonstrative words को हम noun से पहले यूज करेंगे तब वो demonstrative words बन जाते हैं demonstrative determiner. तो यहाँ पे जो that and this जो हमने यूज किया है ये है demonstrative determiners. Next is let me show you these patterns. Yes, these patterns. अब यहाँ पे देखिए patterns क्या, it is plural, it is noun, we can say it is a plural noun क्योंकि this और that जो है वो singular demonstrative words हैं, these and those are plural demonstrative words. इसीलिए जहां this that होगा उसके आगे singular noun यूज होगा, जैसे यहाँ पे this और that था इसलिए हमने singular noun butterfly यूज किया, और जहां पे these and those होगा उसके आगे जो noun होगा वो always plural यूज होगा. जैसे हमने लिखा है these patterns, जैसे कर सकते थे those patterns, THOSE, those patterns. तो patterns is a noun, we know very well.
और इससे पहले हमने यूज किया डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स दीज एंड दोज, इसलिए ये हो गए हैं अब डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। अभी ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं है, बिकॉज इन इंग्लिश व्हाट हैपेंस, जब डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स नाउन से पहले यूज होते हैं इन अ सेंटेंस तो होते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, एंड व्हेन दीज सेम वर्ड्स डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स आर यूज्ड without nouns, it means beginning of a sentence, or you can say beginning, yes, or at the end of the sentence, before verb or after verb, तब बन जाते हैं demonstrative pronouns. Next is I like this book. अब book क्या है, सिंगुलर है, और this is again a demonstrative word जो noun से पहले यूज किया, इसीलिए इसे कहते हैं demonstrative determiner. इसी तरीके से he wrote those letters. अब those क्या है, again it is a demonstrative determiner because it used before a plural noun, that is letters. So number 1, अब ये तो बन गए demonstrative determinants. अब हम बात करते हैं कि same words demonstrative pronouns कैसे बनते हैं. देखते हैं यहाँ पे लिखा without nouns. If we are using demonstrative words without nouns in a sentence, तब वो बन जाते हैं demonstrative pronouns. It is very easy. Yes, जैसे example है look at this. Yes, look at this. We have a clause here. अब देखिए this जो है, अब इसके आगे हमने कोई noun यूज नहीं किया है. There is no singular noun. If I say look at this book, अब this के आगे book को यूज किया, जब book यूज किया एज ए सिंगुलर नाउन, अब this का फंक्शन हो गया डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर. लेकिन this जो है विदाउट नाउन यूज किया गया है. Look at this. Yes, look at this. अगर मैं कहूं मार्कर के बारे में बात करूं, लुक एट दिस, अब यहां पे दिस जो है वो वर्क कर रहा है किसका, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का. ठीक है, अब यहां पे डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर नहीं है. डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर के लिए ये मैंडेटरी कि उसके आगे एक नाउन होना चाहिए, तो यहां पे इसके आगे कोई नाउन नहीं है, तो इसीलिए ये बन गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. सेकंड है दीज आर बुक्स. अब दीज देखिए क्या है, दीज इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. अब इसके आगे वर्ब है आर, लेकिन इसके आगे मैंने कोई नाउन यूज नहीं किया है. देयर इज नो प्लूरल नाउन यूज आफ्टर दीज. तो यहां पे इन केस क्या है, ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट बिफोर वर्ब, और यू कैन से विदाउट नाउन्स. नेक्स्ट है दैट्स टेरिबल, और यू कैन से दैट इज टेरिबल. यस, अब यहां पे दैट्स टेरिबल, अब एपोस्ट्रोफ एस, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इज. अब दैट इज टेरिबल, अब दैट के बाद हमने यूज किया है वर्ब जो इज है, और इसका एपोस्ट्रोफ एस इट इज शॉर्ट फॉर्म, और टेरिबल दैट इज अ नाउन. लेकिन दैट की जस्ट बाद हमने कोई नाउन यूज नहीं किया, इसके बाद है वर्ब, तो इसीलिए दैट का फंक्शन यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज दोज आर लेटर्स. अब देखिए दोज जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है उसके आगे हमने यूज किया है प्लूरल वर्ब जो आर है, हमने प्लूरल नाउन यूज नहीं किया. सो दोज आर लेटर्स, तो इस क्लोज में दोज जो है किसका फंक्शन कर रहा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, बट नॉट डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स. इट मींस जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिटरमिनर्स ऑलवेज यूज्ड टू द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव्स. सो वो चाहे डेमोस्ट्रेटिव हो, चाहे डेफिनिट हो, इंडेफिनिट हो या पजेसिव डिटरमिनर हो, वो हमेशा नाउन से पहले ही यूज होते हैं या नाउन फ्रेज से पहले ही यूज होते हैं. उसी तरीके से जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स है दिस, दैट, दिस, दोज, जब वो नाउन से पहले यूज होंगे तब फंक्शन करेंगे डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर का. वो विदाउट नाउन यूज होंगे, इसका मतलब उनके बाद जस्ट कोई वर्ब यूज किया गया है, यस, या वो किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की पोजीशन ले रहे हैं, तो वो कहलाएंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे इन एग्जांपल्स में दिया गया. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पीपल एंड थिंग्स कि जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं वो पीपल और थिंग्स के लिए कैसे यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नो वेरी वेल, वी हैव 4 डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स जो डिस्कस कर चुके हैं. लिखा कैन बी यूज्ड एज डिटरमिनर्स विद नाउन्स दैट रेफर टू ईदर पीपल और थिंग्स. कह रहा है कि जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं वो हम डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ व्हाट, जब वो नाउन्स के साथ यूज होंगे. लिखा है यूज्ड एज डिटरमिनर्स विद नाउन्स. ठीक है, या तो वो किसी पर्सन को रेफर कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर थिंग को रेफर कर सकते हैं, लेकिन विदाउट नाउन्स वी कांट से कि डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स डिटरमिनर्स कहलाएंगे. नो, विदाउट नाउन्स बन जाते हैं प्रोनाउंस. ठीक है,
केस एग्जाम्पल आते हैं, लिखा है दिस चाइल्ड, ठीक है, यू कैन से दिस बॉय, दिस चाइल्ड, दिस मार्कर। अब आप देख सकते हैं कि जो डिमोस्ट्रेटिव वर्ड है उसके जस्ट आगे एक नाउन को यूज किया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं हम डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। वो चाहे पर्सन हो, यस, चाहे थिंग हो। जैसे दैट हाउस, अब दैट के बाद क्या, हाउस है, यस, जो एक थिंग है, तो अब दैट क्या बन गया यहाँ पे, डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। यस, उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल से हमारे पास, यस, दो दीज बॉयज और कैन से दीज गर्ल्स। अब बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन्स है, तभी हमने यूज किया प्लूरल डिमोस्ट्रेटिव वर्ड, इसे कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। इसी तरीके से नेक्स्ट है दोज होम्स और बुक्स। होम्स एंड बुक्स बोथ आर प्लूरल, तो हमने यूज किया है डिमोस्ट्रेटिव वर्ड दोज, जो प्लूरल नाउन्स के साथ आता है। इसमें यहाँ पे क्या है, ये है डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। अकॉर्डिंग टू द रूल इट सेज अगर डिमोस्ट्रेटिव वर्ड्स नाउन के साथ यूज किए जा रहे हैं तो वो बन जाते हैं डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, और यही सेम डिमोस्ट्रेटिव वर्ड्स विदाउट नाउन यूज किए जाएं तब ये कहलाते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। Hello guys, so come to the next point we have to discuss here about the demonstrative pronouns determinants. What is that? Difference. अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि what is the difference between two kinds of demonstrative words. Number one is this, these. Number two is those and that. So if we talk about the two words, we have this and these. Actually the words are used for the closeness or you can say proximate to the speakers. So ये दो words हैं जिनको हम कहते हैं this and these, ये क्या है, क्लोजनेस या प्रोक्सीमेट के लिए यूज किए जाते हैं। इट मीन्स कोई चीज या कोई स्पीकर, कोई लिसनर या कोई थिंग जो बहुत करीब है, जो किसी के पास है। So in that case, we have used the demonstrative words this and these. Come to the examples, we can understand very well. If I say this is very nice, अब this is very nice, it means this is very nice means कि जो चीज बहुत अच्छी है वो बहुत करीब है या उसके पास है। If I say it is a marker, if I say this is red marker, so हमने this इसलिए यूज किया क्योंकि ये मार्कर जो है मेरे करीब है। Yes, it is in my hand. ये मुझसे दूर नहीं है, there is no distance. तो this का यूज यहाँ होता है कि जब कोई चीज या कोई स्पीकर yes करीब होता है, there is no distance, इसे कहते हैं क्लोज या प्रोक्सीमेट, किसी के करीब होना। सो इसी तरीके से if I say get this cat off my shoulder, अब this cat मतलब ये cat की बात हो रही है, this cat, तो this यहाँ पे देखिए क्या है, this ये प्रोनाउन है, दिस इज वेरी नाइस। जैसे कि मैंने बताया कि डिमोस्ट्रेटिव वर्ड्स जब विदाउट नाउन यूज होते हैं उन्हें कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट में दिस केट, अब जो दिस है वो नाउन के साथ यूज हो रहा है, यस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, लेकिन फंक्शन इज सेम, इट मींस क्लोज और प्रोक्सीमेट। केट जो है उसके क्लोज है, इसलिए वहां पे उसने यूज किया दिस केट, नॉट दैट केट, ठीक है। नेक्स्ट इज आई डोंट नो what I am doing in this country. Just in this country. I don't know what I am doing in this country. It means somebody is living in the country. तभी उसने यूज किया है this with country, that is a noun. Yes, singular. So इसीलिए this जो यहाँ पे वो क्या है, demonstrative determiner है, because it is used with noun. और ये क्या है, proximate और closeness, yes, demonstrative determiner है, जो करीब के लिए यूज किया जाता है। there is no distance. आप नहीं कह सकते in that country, no. अगर आपने that यूज किया, that is not for closeness or proximate. that जो यूज किया जाता है वो distance के लिए यूज किया जाता है या absence के लिए यूज किया जाता है। yes, so that is wrong here. Next is, do you like these earrings? अब earrings, you know, these earrings, अब it means these इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इयरिंग्स जो है किसी के पास है, किसी के करीब है, जहां इयरिंग्स और किसी स्पीकर के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, तो इसीलिए यूज किया है दीज इयरिंग्स। अब दीज का फंक्शन क्या है, डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, बिकॉज इट कम्स विथ प्लूरल नाउन, दैट इज इयरिंग्स, ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब हम दो और डिटरमिनर्स की बात करें, सॉरी डिमोस्ट्रेटिव वर्ड्स की बात करें,
जो है देट एंड दोज, ठीक है। अभी हमने बात की दिस एंड दीज की, अब बात होगी देट एंड दोज की कि देट एंड दोज, दिस एंड दीज से कैसे डिफरेंस है। What happens? These two demonstrative words are used for distance or remoteness. Yes, to the speaker or somebody is absent. अब इसका क्या मतलब है कि that और those जो और दो demonstrative words हैं, इनको यूज वहां करते हैं जब things, speaker, people, जब लोगों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होती है, या कह सकते हैं कि one is present, second is absent वहां पे। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए डेट स्मेल्स नाइस, इज इट फॉर लंच। डेट स्मेल, अब कहने का मतलब है जो स्मेल आ रही है वो करीब नहीं है, वो कहीं दूर से आ रही है। सो डेट स्मेल, यस। अब यहाँ डेट स्मेल्स एंड स्मेल, यू नो दैट इज द नाउन, वी नो वेरी वेल। इसके साथ डेट जो वर्ड यूज किया गया है डेमोस्ट्रेटिव वर्ड, ये फंक्शन करेगा डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर का, और डेट यूज किया जाता है डिस्टेंस या रिमोट। यस, इट मींस आप समझ जाइए इसको अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इज गेट देट केट ऑफ द पियानो। अब देट केट की बात हो रही है कि जो पर्सन केट को पियानो से दूर करने की बात कह रहा है, केट और उस पर्सन के बीच में बहुत डिस्टेंस है। यस, इसीलिए वो दूसरे से कह रहा है, ही ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट टू द अनदर पीपल गेट देट केट, कह रहा है कि उस केट को पियानो से दूर रखिए। सो दैट इज यूज्ड फॉर द रिमोट और यू कैन से डिस्टेंट, इज अ डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल द टाइम आई वॉज इन दैट कंट्री। अब देखिए यहाँ पे है, अब वहां पे दिस कंट्री था, यहाँ पे क्या दैट कंट्री है। इसका मतलब इट मीन्स इट टॉक अबाउट द पास्ट सिचुएशन, ऑल द टाइम आई वॉज इन दैट कंट्री। अब दिस कंट्री नहीं, दिस कंट्री टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड दैट कंट्री इट टॉक्स अबाउट द पास्ट सिचुएशन। लिखा आई हेटेड इट, देखिए ईडी लगा दिया यहाँ पे, तो ईडी का मतलब होगा पास्ट टेंस। जब ईडी वर्ब में ऐड होता है तो पास्ट टेंस की बात करता है। सो डेट इट मीन्स कि जो चीज पहले गुजर चुकी है, या डेट मीन्स गुजर और दूसरी कंट्री और अपनी कंट्री से उसके बीच में क्या बहुत सारा डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे डेट को यूज किया गया है। अभी आई लाइक दोज इयररिंग्स, वेयर डिड यू, यस वेयर डिड यू गेट देम, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे दोज इयररिंग्स मतलब क्या है, नाउ अब स्पीकर और इयररिंग्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, देयर इज अ रिमोटनेस, देयर इज नो क्लोजनेस, कोई क्लोजनेस नहीं है, इसीलिए हमने यूज किया दोज विद इयररिंग्स। एंड इयररिंग्स इज अ प्लूरल नाउन, उसके साथ दोज जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है जो फंक्शन कर रहा है डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर का, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स, दिस, दीज, दैट, दोस। यस, दिस, दीज जो है वो यूज किया जाता है क्लोज या कह सकते हैं प्रोक्सीमेट के लिए, जहां बहुत कम डिस्टेंस होती है, कैसे नो डिस्टेंस इज दियर। एंड दैट, दोज यूज किया जाता है जहां पे डिस्टेंस होती है, कैसे रिमोटनेस इज दियर। ओके, लेकिन ये कभी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन सकते हैं, कभी डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर बन सकते हैं। दैट इज द बेसिक difference between these. Okay, so come to the next point to find out the second difference between demonstrative words. एक difference हमने find कर लिया है कि this, these, that and those use different words because of the distance, because of the nearness, because of proximate and remoteness. Second difference क्या है, time के according, कि हम डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स जो दिस, दीज, दैट, दोज हैं, हम उनको टाइम के बेस पे भी अलग अलग यूज कर सकते हैं। हाउ? नंबर वन सेज दिस एंड दीज कैन रेफर टू सिचुएशंस और इवेंट्स विच आर गोइंग ऑन और जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। कि अगर कोई चीज स्टार्ट होने जा रही है, यस, जस्ट गोइंग ऑन और अबाउट टू स्टार्ट, यस, या स्टार्ट हो रही है। अंडरस्टूड? सिचुएशन क्या है, इवेंट, जब कोई इवेंट, कि दिस एंड दिस ये दो ऐसे डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, कहां यूज करते हैं, जब कोई इवेंट स्टार्ट होने जा रही हो या स्टार्ट हो चुकी हो, यस, गोइंग ऑन और जस्ट टू स्टार्ट, तो वहां पे हम दिस एंड दिस डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स को यूज करेंगे। एग्जाम्पल है आई लाइक दिस म्यूजिक। अब this music means the music has started, or you can say music is going on, or music is going to be started. ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सो म्यूजिक इज अ नाउन, वी नो इट, दैट इज सिंगुलर, एंड इसके साथ हमने यूज किया है डेमोस्ट्रेटिव वर्ड दिस, दिस म्यूजिक। तो कम टू द रूल सेज
कि अगर डिमोस्ट्रेटिव वर्ड किसी नाउन से पहले यूज किया गया है, विथ नाउन यूज किया गया है, तब ये क्या किसका फंक्शन कर रहा है? डिमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर का। नेक्स्ट इज वॉच दिस। यस, वॉच दिस। अब देखिए दिस जो है यूज किया गया विदाउट नाउन, लेकिन व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन टाइम का दे रहा है वॉच दिस, इट मीन समथिंग इज गोइंग ऑन और टू बी स्टार्टेड। अब यहां पे ये किसका फंक्शन कर रहा है? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ए डीपी मींस डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिसन टू दिस, you'll like it. अब listen to this again, this demonstrative word is to use in situations when event is going on. So this look, this and this is again function of demonstrative pronoun क्योंकि ये without noun use किया गया है। अब देखिए this is a police message। अब this क्या है? अगेन इट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस विदाउट नाउन। ये अगेन क्या है? एक बार डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम देट एंड दोज। तो एक डिफरेंस ये। सेकंड डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं कि देट एंड दोज कहां यूज किए जाते हैं एज कंपेरिजन टू दिस एंड दिस। अब देखिए देट एंड दोज कैन रेफर टू सिचुएशंस और इवेंट्स, यस, दैट इज व्हिच हैव बीन फिनिश्ड और डिस्टेंट इन द पास्ट। ये वही बात आ गई कि दैट एंड दोज, ये दो ऐसे डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, ये उस सिचुएशन में यूज किए जाते हैं जब इवेंट फिनिश हो जाती है या खत्म होने वाली होती है या इवेंट खत्म हो चुकी होती है। इट मींस टॉक्ड अबाउट द पास्ट इवेंट और सिचुएशन। देखिए दिस और दिस कब यूज किए जाते हैं? जब कोई इवेंट शुरू होने जा रही होती है, शुरू हो चुकी होती है। लेकिन दैट एंड दोज यूज कब होते हैं? जब कोई इवेंट फिनिश हो चुकी है या खत्म हो चुकी है, या कह सकते हैं खत्म होने जा रही है, या किसी पास्ट इवेंट की बात चल रही है। लाइक दैट वाज नाइस, अगर हम बात करें दैट वाज नाइस, तो वाज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है जो पास्ट की बात करता है, तो हम कह सकते हैं उसके लिए दैट वाज नाइस। अब यहाँ दिस यूज नहीं कर सकते, दिस वाज नाइस ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिस कब यूज किया जाता है? जब इवेंट स्टार्ट हो चुकी हो या हो रही हो। ओके, तो दैट यहाँ पे यूज किया गया है विदाउट नाउन, तो ये फंक्शन करा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ओके, नेक्स्ट इज हु सेड दैट। हु सेड दैट, यस, वो किसने कहा था? अब सेड देखिए आप, यहाँ मेन वर्ब है, अगेन इट इज इन पास्ट टेंस, तो ये पास्ट इवेंट की बात हो रही है, तभी हमने यूज किया दैट एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? डिड यू सी दैट। अब यहाँ पे देखिए अगेन ये पास्ट टेंस है, डिड जो यूज हो रहा है, यू नो वेरी वेल इट इज द पास्ट टेंस फॉर्म, तभी हमने यूज किया दैट। तो दैट हैज अ फंक्शन ऑफ अगेन ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल इज हैव यू एवर हर्ड फ्रॉम दैट स्कॉटिश बॉय you used go। अब again you know that is used with the Scottish, that is the name, yes, noun। तो यहाँ पे ये किसका फंक्शन कर रहा है? डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर का। and what happens, it is used to find out the actual situations in the past or this situation with events is finished, that is used that here। नेक्स्ट डिफरेंस कर सकते हैं एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। इनका एक और डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस दिस देट दोज में एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन के लिए भी यूज होता है। अगर जहां पे एक्सेप्टेंस की बात हो या इंटरेस्ट की बात हो, वहां हम यूज करते हैं दिस एंड दिस, और जहां पे रिजेक्शन की बात हो या जहां डिसलाइक की बात हो, वहां होता है दैट एंड दोस। ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं। We can read more and more about demonstrative words as a function of demonstrative pronouns or demonstrative determiners, और इनमें हम easily difference find कर सकते हैं कि demonstrative words, demonstrative determiner कहाँ बनते हैं और demonstrative pronouns कहाँ बनते हैं, और इनके बीच में क्या क्या difference। I hope you understood। If still you have any doubt, please tell me in the comment box, and if you have any suggestion, opinions, please share us। इसके बाद हम एक लास्ट डिटर्मिनर टॉपिक जो है उसे कहते हैं क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स। सो आई स्टॉप हियर। प्लीज शेयर वीडियो, like video, and subscribe channel। Thank you so much।